हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यूनिट 7 का सेक्शन सी पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये पोएम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इस पोएम में कहा जा रहा है कि हमारा जो सपना हो, जो सपनों की दुनिया हो, वो ऐसी हो जिसमें जहाँ कोई भेदभाव नहीं हो, चाहे वो जात पात को लेके हो, चाहे वो रंग रूप को लेके हो। तो ये चीज़ रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गॉड से प्रेयर करते हैं कि हमारा ऐसा दुनिया होना चाहिए। वो सबको भी बोलते हैं कि किसी से भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो मैं 2 लाइन पढ़ती हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ पर। The poet dreams of a world and hopes that his dream comes true for the good of everyone. Read the poem which is actually a prayer that the poet is making to God. मैं प्रेयर पढ़ रही हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिए। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो मेरे इस पोएम को देख के समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। तो इस पोएम में जो रविन्द्रनाथ टैगोर वो कह रहे हैं कि हमारा जो अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, कोई जाति भाव, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी कस्टम या रीति रिवाज नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत पहुँचे। तो ये सब चीज़ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर गॉड से प्रेयर करते हैं कि सब कोई को मिलजुल के रहना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन आंसर बताने से पहले यहाँ पर नंबर ए में फिल द ब्लैंक्स था, कुछ वर्ड्स है वो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं इस बुक में जो दिया गया फिल द ब्लैंक्स है वो मैं पढ़ूंगी और उसको मैं समझाऊंगी। फिर नंबर ए फियर, बी नॉलेज, सी डिस्क्रिमिनेट, डी ट्रूथ, ई वर्किंग टुवर्ड्स परफेक्शन, नंबर एफ प्रैक्टिकल, जी कस्टम्स, एच वाइडन देयर थॉट्स। तो चलिए अब मैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने जा रही हूँ जो बुक में दिया गया है। The poet's prayer to God is to have a country where there is no fear and where knowledge is free for all. The countrymen should not discriminate on the basis of caste or creed and they should speak the truth. The people should not get tired of working towards perfection and they should be practical and progressive in their thoughts and actions. They should not hold on to useless custom but should widen their thoughts and let their minds be guided by God. चलिए अब मैं आपको इसका नंबर बी बताने वाली हूँ। On what basis do people discriminate against one another? What does the poet mean by where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि ऐसी दुनिया हो जहाँ पर लोग जो है फ्रैगमेंट्स मतलब सेक्शन में ना बटे, जैसे जात पात होता है, जो रंग रूप होता है, उस चीज़ में सेक्शन में ना बटे। बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स, क्योंकि उनकी जो सोच होती है बहुत छोटी होती है। कहते हैं ना कि वो छोटे जात का है तो उसके साथ नहीं उठना बैठना चाहिए। तो इस टाइप से ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए हमारी इस दुनिया में। The poet has used symbolism. What do fragments and narrow domestic walls symbolize? Now the answer is people discriminate against one another on the basis of caste and creed. By the given lines, the poet conveys that the world is divided by narrow walls of discrimination. There is communalism and regionalism present in the world. Fragments refer to different sections या communities of society. Narrow domestic walls is a reference to customs, traditions, and practices that encourage discrimination on the basis of caste, creed, gender, etc. Now come to number C question. Find and write all the lines come from the poem that have alliteration. Alliteration उसको बोलते हैं बच्चों जिसमें कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट हो। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, सेलर में एस, स्मार्टली में एस और साइलेंटली में एस और सी में एस, तो उसी चीज़ को एलिट्रेशन कहते हैं। तो पोएम में कौन कौन से लाइन में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है वो आपको बताना है। नाउ द आंसर इज
The head is held high, where the world has not been broken, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms into the dreary desert sand of dead habit, into that heaven of freedom, my father. आप यहाँ इन सब वर्ड्स में देख रहे हैं कि अगर इस लाइन की बात किया जाए, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, एफ कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, डी हियर ड्रियरी में कॉन्सोनेंट है, डेजर्ट में डी, डेड में डी, फिर यहाँ आप देखेंगे स्ट्राइविंग में एस, स्ट्रेचेस में एस। तो ये सब एलिट्रेशन है जो पोएम में यूज़ किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में पढ़ती हूँ। डू यू फील we Indians still live in a world surrounded by fear and threat? What do we fear and how can we overcome our fears? क्या आपको लगता है कि जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं या जिस दुनिया में रह रहे हैं, क्या वहाँ अभी भी डर है या थ्रेट है, डेंजर है? अगर है तो उससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आंसर इस प्रकार है, when people hold on to old customs and traditions, there is no room for being practical and reasonable. People are divided in their beliefs and practices, and all are not treated as equals. There is constant fear and hatred. मतलब कहने का मतलब अभी भी हमारे भारत में कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ कस्टम या ट्रेडिशंस है जिसका कोई प्रैक्टिकल रीज़न नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग को मानना पड़ता है और ऐसे ट्रीट किया जाता है कि कोई बराबर में नहीं हो, मतलब इक्वल नहीं हो, इक्वलिटी नहीं यहाँ पर। देयर इज कॉन्स्टेंट, अभी भी फियर है उस चीज़ का, उस ट्रेडिशंस का, उस कस्टम्स का, जिससे कि आज भी हम लोग घृणा करते हैं। तो ये था बच्चों इस पोएम का क्वेश्चन आंसर। और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि आपको जो जो वीडियोस चाहिए किसी सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश का या फिर हिंदी का, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूँगी उसको बना के आपको दूँगी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।